So good morning all of you children. We were doing chapter poverty and we have covered many topics, like we have done a case study what is poverty, then case study of poverty in urban and rural areas. Can you hear my voice children? Yes or Yes, no? ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. All right. So we had studied about rural poverty, the story of Lakha Singh, then the characteristics of poverty, then Gandhiji's view on poverty that India can never become self-sufficient until and unless each and every person of India is, free of human suffering. And human suffering, you know that अगर कोई भूखा है, कोई पुअर है, कोई बीमारी से मर रहा है या कोई अनपढ़ है, ये सब ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग है, जिससे हर व्यक्ति को जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए. देन वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी. वल्नरेबिलिटी में आपने पढ़ा था कि लाइक व्हाट इज वल्नरेबिलिटी. वर्ड मीन्स, इट मीन्स the chances of the people, which class of people or which group of people are more likely to be suffered during any problematic situation in poverty. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उस केस में सबसे ज्यादा सफर कौन करता है पावर्टी की वजह से, तो उसे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं. लाइक आई हैड गिवन एग्जांपल ऑफ द पेंडेमिक व्हिच इज गोइंग ऑन. So during this time, you know that most of the people they lost their jobs, but and due to lockdown, many people suffered. But the poor people who were landless, who were daily wage workers, they suffered the most. And जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स में थे या जो भी वेल ऑफ कंडीशन में थे, वो इसमें जो है अपने आप को सर्वाइव कर ले गए. लेकिन जो पुअर थे, दे सफर्ड द मोस्ट बिकॉज उनके पास वो मीन्स सर्वाइव करने के नहीं थे. द पावर्टी लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. पावर्टी लाइन क्या होता है. अगर कोई बच्चा जो है उसने पावर्टी लाइन नहीं पढ़ी हो, तो दैट चाइल्ड कैन अगेन सी माई the video which I have sent you in the class, Google Classroom or WhatsApp. Now poverty trends in India, here you can see. आपने ये सब जो है already देख रखा है. Now poverty trends in India. Proportion of people below poverty line is called poverty ratio. Poverty ratio in India has decreased from about 45% in 1993 to 37% in 2004 and 5. It means that the rate of poverty, it is a good sign that India is developing, and the rate of poverty, the ratio of poverty in India has declined from 45% to 37%. But 37% it was in 2004 and 5. In 2011-12, it has again come down to 22%. It means that slowly and steadily the percentage of poor people in India is declining. The number of poor people declined from 407 million in 2004-5 to 270 million in 2011 and 12. So continuously this trend is, poverty ratio is declining in India, but still a majority of the portion of Indian population is below poverty line. Then the interstate disparities of poverty in India. Interstate disparities means that not all the states of India are poor. Only few states of India, they are facing major problems. But here you can see the in the India map of India, these shaded areas are those states where the poverty has declined tremendously. All right. Earlier these states used to be poor, but now these states have made some achievement. They have done some measures because of which the poverty is slowly declining in these states of India. In these states of India. For example, Jammu Kashmir, then Himachal, Punjab, Gujarat, Andhra, then West Bengal, Kerala, and Tamil Nadu. So earlier these states were not in a very good position, but now because of their some reform policies or one or the other kind of policies, their condition is slowly, getting better off. Now, one by one, we will see the reason why these states have pulled up their, the position, and they are coming into the prosperous states. Poverty is a serious problem in Orissa, Bihar, Assam, Tripura, and Uttar Pradesh. Orissa and Bihar are the poorest states of India. See, Orissa and Bihar, still they are one of the poorest states of India. Poverty has declined, but in Kerala, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, and West Bengal, poverty has declined tremendously. Now, Punjab and Haryana are the richest states of India. And you know why? Because the farmers of these states are really highly prosperous, and their condition was improved during the Green Revolution era.
सो देयर एज यू नो दैट ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, हरित क्रांति जो आई थी, उसकी वजह से पूरे भारत में जो है फार्मर्स की कंडीशन बहुत इंप्रूव नहीं हो पाई, बट पंजाब हरियाणा में जो है फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई। इसीलिए जो है पंजाब हरियाणा हमारे आज के टाइम में जो है रिचेस्ट स्टेट्स इंडिया के। देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरल, एंड केरल में जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काफ़ी कम हुआ, इसलिए केरल में काफ़ी पॉवर्टी कम हो चुकी है। देन वेस्ट बंगाल में जो है आपके भूमि सुधार जो है मेजर्स यूज किए गवर्नमेंट ने। भूमि सुधार मीन्स लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड रिक्लेमेशन ऑफ द वेस्ट लैंड। जो भी हमारी बंजर भूमि थी, जो भी अनयूज्ड लैंड था, उसको वापस से रिक्लेम किया गया, बेहतर बनाया गया, उस पर खेती की गई, जिससे वेस्ट बंगाल की कंडीशन इंप्रूव हुई। देन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में जो है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत बेहतर बनाया गया। पीडीएस सिस्टम मीन्स जो भी फूड ग्रेन्स सरकार के पास मौजूद होता है इन देयर लार्ज ग्रेनरीज, जो भी ग्रेनरीज जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है उसे हम ग्रेनरीज कहते हैं। मतलब जो भी अनाज सरकार किसान से लेती है, खरीदती है, उसे वो स्टोर करके रखती है, ताकि उसे सो दैट इट कैन बी सप्लाइड टू ईच एंड इट कैन बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब तो ये हर एक स्टेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने नागरिकों तक या अपने स्टेट के लोगों तक क्या अनाज पहुंचा पा रही है या नहीं पहुंचा पा रही है। तो तमिलनाडु एंड आंध्रा जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया और हर व्यक्ति तक जो है अनाज को पहुंचाया और गरीब लोगों को बहुत ही कम रेट पर खाना पहुंचाया गया। तो ये देख सकते हैं पावर्टी रेशियो इन सेलेक्टेड इंडियन स्टेट्स like Bihar still is at the topmost of the poverty ratio in India. Like 33% of the people in Bihar, they are below poverty line, and it is according to 2011 census. We do not have right now the new census data. Then 32% in Odisha, Assam 31.7 in Madhya Pradesh. So they are the one of the poorest states of India. Then Uttar Pradesh 29.4%. देन केरल सबसे नीचे है, 7.1% ही सिर्फ उसमें गरीब है। हिमाचल प्रदेश भी बेहतर कंडीशन में, गुजरात भी बेहतर कंडीशन में। तो बेसिकली ये जहाँ पे भी 19 या 17 से ऊपर है, ये स्टेट्स की कंडीशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बेसिकली कर्नाटका से ऊपर। वैसे तो किसी भी स्टेट में 1% भी जो है गरीब नहीं होने चाहिए, तो डज नॉट शो अ वेरी गुड साइन ऑफ अ कंट्री। नाउ ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ये थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड जो है आपको ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है पूरे विश्व भर में जो है गरीबी का क्या कंडीशन है। $1.90 पर डे इज ग्लोबल पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, $2 मतलब लगभग $2 जो है, अगर उनके देश में कोई व्यक्ति, किसी भी देश में अगर व्यक्ति नहीं कमाता है एक दिन में, तो उसको जो है गरीब कहा जाता है। The proportion of people below poverty line in the world decreased from fallen 36% in 1990 to 10% in 2015। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 36% जो है लोग गरीब जो है गरीबी रेखा के ऊपर हैं, बट नाउ only 10% people are below poverty line in 2015। So poverty declined sharply in China, but ये जो है वेरी करता है from state to state, from country to country। Like poverty declined sharply in China and Southeast Asia due to economic growth and human capital formation। So यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चाइना जैसा देश है या सिंगापुर है या फिर आपका मलेशिया है, ऐसे जो साउथ ईस्ट और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज लाइक इंडिया ऑल्सो, तो इन कंट्रीज में पावर्टी जो है काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुआ है, बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। Now in South Asian countries like India, Pakistan, Sri Lanka, poverty decreased from 34% in 2005 to 16% in 2003. So continuously in South Asian countries like India, Pakistan and Sri Lanka, poverty is slowly declining. Then in Africa, poverty declined from 51% in 2005 to 41% in 2015. So you can see the condition in the sub-Saharan African countries is very pathetic. Like even in 2005, अगर आप और देशों की बात करें देखेंगे तो जैसे कि आप देखिए चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडिया जैसे देश है, वहाँ पे आज के टाइम में पावर्टी जो है 2013 के अकॉर्डिंग पावर्टी 16.2% है। बट वहीं आप अफ्रीका में देखिए तो अभी भी 41% लोग जो है 2015 के अकॉर्डिंग गरीब हैं। तो गरीबी का जो रेशियो जो है वो आपका अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, एंड दीज पीपल आर मेनली सपोर्टेड बाय द जो आपकी रेड क्रॉस है और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे मेनली सपोर्ट फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन दीज कंट्रीज। Then in Latin America,
the ratio of poverty declined from 10% in 2005 to 4% in 2015. Latin America means जो भी आपका जैसे लाइक आपका मैक्सिको है या फिर आपके और जो साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न साइड में जो कंट्रीज हैं उनको हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, तो वहाँ पे भी पावर्टी काफ़ी डिक्लाइन हुई। तो सबसे वर्स्ट कंडीशन जो है ओनली अफ्रीका की है, बाकी जगह पावर्टी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। पावर्टी हैज़ ऑल्सो रीअपियर्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया, और कई कई जगह जो है पावर्टी अगेन जो है रीअपियर हो गई है, लाइक रशिया में। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूएन प्रपोजेस एंडिंग पावर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। मतलब जो यूनाइटेड नेशंस है और डिफरेंट कंट्रीज जो उसके मेंबर्स उन्होंने प्लेज किया है, एंड दे हैव it is a proposal from the UN side that poverty should be eliminated by 2030 from the world. Now, poverty head count ratio comparison among some selected countries. अब कुछ selected countries हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि poverty का क्या condition. नाइजीरिया इज ए, पता है आपको नाइजीरिया कौन से देश में कौन से कॉन्टिनेंट में, बताइए चिल्ड्रन, कैन यू हियर माय वॉइस? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री, बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं। साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री एंड अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंट। सो अफ्रीका में है नाइजीरिया, एंड सी इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट, यू कैन सी द रेशियो ऑफ द, मतलब कि वहाँ की तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मोर ऑफ द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, दे आर नॉट इवन टू अर्न $2 अ डे। देन बांग्लादेश, इंडिया में भी बांग्लादेश में कम पॉवर्टी है, 14.8% एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में 21.2 पॉवर्टी है, पाकिस्तान में 4.0, काफी कम है। चाइना में 0.7, ब्राजील 4.8, इंडोनेशिया 5.7 एंड श्रीलंका 0.8। सो यू कैन सी द आवर नेबर्स आर इन अ बेटर कंडीशन, लाइक श्रीलंका इज इन ए बेटर कंडीशन, बांग्लादेश जो हमसे बेटर कंडीशन में, पाकिस्तान जो है हमसे बेटर कंडीशन में। सो आप ये देख सकते हो कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, बट इससे फर्क पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी जो ग्रो हो रही है उसका बेनिफिट जो है क्या लोगों तक पहुंच रहा है। India always says that India has a very fastest growing economy in the world, but you can see 21.2% of the people are below poverty line, so it does not show a very favorable trend. That's why although we are fastest growing economy, but in human development terms, आपको मैंने मानव विकास के बारे में बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट के उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं। सो इसमें इंडिया को काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगेन दिस इज द चार्ट, सेम थिंग यू कैन सी। चाइना जो है, चाइना में चाइना ब्लू रंग का है, देखो पावर्टी इसमें काफ़ी तेजी से गिरी है। साउथ ईस्ट एंड पैसिफिक में भी पावर्टी जो है आपकी काफ़ी नीचे आई है। साउथ एशिया का ये है, यहाँ भी पावर्टी डिक्लाइन हो रही है। देन सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन में जो देखो पावर्टी पहले भी ज़्यादा थी और अभी बस 40 के ऊपर है, मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। ये देखिए। नाउ कॉजेज ऑफ पावर्टी, अब हम पढ़ेंगे कि भारत में गरीबी क्यों है। नाउ यू कैन सी फर्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल, अगर कोई भी देश गरीब है तो उसके पहले कुछ फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइक सबसे बड़ा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा कॉलोनियल पास्ट। कॉलोनियल पास्ट मतलब जो हमारे कई ऐसे देश हैं जिन पे जो ब्रिटिशर्स हैं या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका रूल जो है रहा है काफ़ी समय तक। लाइक इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर मोर देन 300 ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया जो है इसका पूरे जो ऑल द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल जो हमारे प्रोडक्ट्स थे या जो मिनरल्स थे, दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिया एंड दे वर यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन सेक, फॉर देयर ओन कंट्री। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को तो फायदा हुआ, उनकी इकोनॉमी तो ग्रो कर गई। अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो जो ब्रिटिश है, जो इंग्लैंड है, वो एक आपका प्रॉस्परस कंट्री मानी जाती है, जैसे डेवलप कंट्री। बट अगर आप रियल सेंस में देखें तो उनका जो डेवलपमेंट है वो हमारे जैसे देशों की वजह से ही हुआ है। उन्होंने हम पे कब्जा किया, इंडिया है चाहे चाइना है, चाइना नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब मोर देन 200 कंट्रीज पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है। तो उनको यूटिलाइज करके, उनका एक्सप्लॉयटेशन करके आज जो है ब्रिटिश जो है, इंग्लैंड जो है वो देश काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में थे उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे डिड नॉट बिलोंग टू इंडिया, वो इंडिया को बिलोंग नहीं करते थे। इंडिया है चाहे कोई भी देश है, उनका बस मेन एम क्या था, यहाँ इनको यूज़ करना, इनके हमारे देश के रिसोर्सेज को और अपना फ़ायदा करना।
उल्टा उनके टाइम में हमारी जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, लाइक आयरन स्मेल्टिंग या जो हमारे कपड़ा का उद्योग था जो बहुत फेमस था वर्ल्ड ओवर, उसको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया और उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट सब कुछ डिक्लाइन हो गया। तो बेसिकली अगर आपको कोई इतने सालों तक 300-400 सालों तक यूज करेगा, आपके सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेगा और आपके डेवलपमेंट में कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारी सरकार ही नहीं थी उस समय। इंडिया वॉज रूल्ड बाय अ फॉरेन कंट्री। तो आप कैसे सोच सकते हो, आज हमारे देश की खुद की गवर्नमेंट हमें रूल करती है, तब भी हमें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हर व्यक्ति अभी 21% पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो जब बाहर का देश हमारे ऊपर रूल करेगा तो सोचो कि हम कैसे मतलब डेवलप कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वो तो हमारे बेहतर के लिए सोचेंगे ही नहीं। तो अगर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज आज के टाइम में रिच हैं, तो वो इसलिए रिच है क्योंकि उनके ऊपर किसी ने रूल नहीं किया। यूएसए, कनाडा, देन रशिया और जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्रीज डेवलप हैं बिकॉज इनके ऊपर किसी ने रूल नहीं किया है। लेकिन हम लोगों के ऊपर जो है दूसरी पावर ने रूल किया है, इंग्लैंड ने बहुत सालों तक रूल किया है। तो हमारे ये कंडीशन होना जो है ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर हम पे भी किसी ने रूल नहीं किया होता तो हम शायद उनसे बहुत आगे होते। Then next, rapid growth of population. Then again, other problem is that India is poor because of a huge population in India. Then India's population is increasing at a very fast rate. The present annual growth rate is 1.6%. आज के टाइम में इसकी 1.6% जो है एनुअल रेट है ग्रोथ की। इट लीड्स टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ पॉपुलेशन जो होता है, अगर वो एक देश के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हो तब तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर रिसोर्सेज कम है हमारे देश में, संसाधन कम है एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, देन इट विल कॉज, और आप जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन को बेहतर चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो उससे क्या होगा फिर? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ इन इंडिया यू कैन सी दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। आवर पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 1 बिलियन मार्क, बट द गवर्नमेंट हैज फेल्ड। एंड गवर्नमेंट की भी कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, बिकॉज हमारी जो है पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि गवर्नमेंट कहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। देन पावर्टी है, इसकी वजह से जो है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करनी पड़ रही है। तो द सेकंड रीजन फॉर पावर्टी इन इंडिया इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो इफ सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज promoting number of measures so that population can be controlled, but still now we have crossed the line, or we have already crossed the line, और जो सेफ जोन होता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देन ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। देन हमारे देश में आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो है उसको लागू किया गया था, बट उस ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है बेनिफिट सबको नहीं मिल पाया। इट वॉज लिमिटेड टू फ्यू स्टेट्स एंड फ्यू क्रॉप्स ओनली, like states of Punjab, Haryana and Western UP, they were able to develop because the government only focused in these states and only on few crops like wheat की जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गई थी, बट चावल है, पल्सेस है, इन सब की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाई। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन इट वाज लिमिटेड इन फ्यू स्टेट्स, इट्स सक्सेस वाज लिमिटेड एंड इट वाज नॉट it does not covered all the crops. So majority of and you know that India is a agricultural dominant country. Most of the people, they follow agriculture as their occupation. So if agriculture was not developed in other states, so how we can expect that farmers will they will grow and they will become economically self sufficient. So the farmers of Bihar, Orissa, eastern Uttar Pradesh and most of the other states, they remain poor, whereas only few states they became prosperous after green revolution. So now fourth reason is economic inequality. Now most of the resources of India are owned by a small group of rich people. Inequality between the rich and the poor is one of the main cause of poverty. So other problem in India is economic inequality. India में economic inequality है, like there are some group of people, मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास बहुत सारी resources हैं, and बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी resources नहीं है। अगर हमारे देश में 10 लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आते हैं, तो हमारे देश में आप देखिए 22% ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। सो देयर इज ह्यूज इनइक्वालिटी इन इन इंडिया। कुछ लोग हैं जो बहुत रिच है और बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं। तो अगर हमें अपने देश को डेवलप करना है, दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हैज़ टू बी रिमूव्ड। And then last is indebtedness. Indebtedness means many people have taken loans from money lenders for unproductive purposes. They are not able to repay the loan, so they are in debt trap. इंडेप्टनेस मतलब क्या होता है? जब हम किसी से कर्जा लेते हैं और हम उसको वापस नहीं कर पाते तो हम उस कर्ज में डूब जाते हैं। देन आपको पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं या फिर जो गरीब लोग होते हैं वो जो है लोन लेते हैं
कर्जा लेते हैं और मनी लैंडर्स से, और जो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मतलब उनको लोन देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो उसको रीपे नहीं कर पाते हैं और वो जो है उसी जाल में फंस जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं गरीबी की हैं। आप इसको वापस से एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपसे इसको पूछ ये आई विल आस्क यू ऑल दीज पॉइंट्स। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, देन रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया एंड इंडेप्टनेस। इंडेप्टनेस मीन्स जो भी कर्जा भारत के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट, नाउ गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। कौन सा रजिस्टर? कुछ कह नहीं सकते, सब इधर उधर पड़ा होगा। अटेंडेंस आज तो किसी पेपर पे ले लो, उसके बाद ले लेंगे। Now government strategy of poverty alleviation. Now government has Indian government is doing many things so that poverty can be alleviated from India. Alleviation means to remove poverty from India. Now there are two way mechanism through which poverty can be removed by which has been looked after by the government of India. Like first is promotion of economic growth, and second is anti-poverty program. So our government has focused on these two principles so that poverty can be alleviated. Now what is promotion of economic growth? First of all, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहिए. वी शुड ओपन इंडस्ट्रीज, वी शुड ओपन द मोर एंड मोर हॉराइजन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, ताकि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो सके और पावर्टी कम हो सके. मतलब देखो, लोग गरीब हैं तो हमें आर्थिक ग्रोथ करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि लोगों की जो है स्थिति बेहतर हो सके. और यह हम कब कर सकते हैं? जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, न्यू जो है अपॉर्चुनिटीज डेवलप करेंगे फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है. देन सेकेंड जो है वह है हमारा एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स. नाउ व्हाट इज एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स मींस, लाइक पूरे भारत में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम ऐसे ही बिना किसी एम एंड ऑब्जेक्टिव के अगर हम कोई प्रोग्राम जो है उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उससे ऐसे इतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहले हमें कुछ टारगेट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वो आर द मोस्ट पुअर इन इंडिया, बिकॉज हर आदमी बहुत पुअर नहीं है. कुछ ऐसे हैं हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर रीजन, हु आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. So first of all, we have to identify the poorest of the poor people groups in India, and then उनके बेसिस पे हम एंटी पावर्टी प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि उन लोगों की को टारगेट लेके चलेगा. ठीक है ना? तो सरकार का एम क्या था कि अगर हमने उन लोगों को पता लगा लिया जो सबसे पुअर हैं भारत में, वो ग्रुप्स जो हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट और रिलीजन को ही या रीजन को ही बिलोंग करते हैं, तो अगर हमने उस ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको टारगेट करते हुए हम उनके लिए प्रोग्राम चलाएंगे, जिससे अगर वो लोग डेवलप हो जाएंगे देन इससे काफ़ी मदद मिलेगी और इंडिया में पावर्टी को कम करने में काफ़ी ये हेल्पफुल होगा. तो ये सब चीज़ें जो है दो तरह के प्रोग्राम्स लाए गए, वन फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अदर वाज एंटी पावर्टी, टारगेटेड एंटी पावर्टी programs. मतलब some groups who were the poorest of the poor, they were identified, and particular programs for their making as they were targeted so that they can be developed. Now promotion of economic growth, what does it mean? India's economic growth is one of the fastest in the world. Economic planning is adopted for achieving quick economic growth. Economic growth will create employment opportunities and reduce the problem of poverty. As I said in the earlier slide, that economic growth means to create new opportunities of employment which can be created with the industrial development and other and also with the development of other sectors of economy, like जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, टर्जरी सेक्टर है, इसको जितना हम डेवलप करेंगे उसमें एम्प्लॉयमेंट का स्कोप इंक्रीज होगा एंड लोगों को रोजगार मिलेगा. तो सबसे पहला था प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देन है हमारा एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स. देन दूसरा था हमारा एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो टारगेट ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे देखो मेनली जो गरीब लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें? गाँव में. तो रूरल जो हमारे पुअर होते हैं. देन अर्बन एरियाज में वो गरीब कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो लैंडलेस डेली वेज वर्कर्स होते हैं, अर्नर्स होते हैं.
जो जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती हैं, जो एक एज ए लेबर काम करते हैं, वो भी एक दिन दिहाड़ी मजदूर होते हैं, हर पर डे उनको पैसा मिलता है। तो इस तरह से हम जो है उनको टारगेट करके हमें प्रोग्राम चलाना है। सो एंटी पावर्टी प्रोग्राम जो हमारी गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर इन ग्रुप्स को टारगेट करके चलाया, वो कौन सा है? पहला है नरेगा, जिसका अभी तो नाम एम हो गया, इसमें एम भी ऐड हो चुका है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड इट वाज पास्ड इन 2005। एंड इस जो है आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्राम चलाती है, उसी में है एक आपका मनरेगा जो बहुत ही फेमस हुआ। इट प्रोवाइड्स 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। देखो ये 200 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे टारगेट ग्रुप है, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्वे कराया इन एवरी स्टेट, एंड विद देयर हेल्प 200 मोस्ट बैकवर्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स वर आइडेंटिफाइड इन इंडिया। और फिर इन दो सो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में सरकार, क्योंकि पूरे भारत में हम थोड़ी लागू करेंगे, तो जो सबसे पूरेस्ट हमारे 200 डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ पे क्या हुआ कि सरकार ने ये कहा कि 100 डेज तक यहाँ पे जो भी जिनके पास रोजगार नहीं है, गवर्नमेंट उन्हें कम से कम 100 डेज, एक साल में जो है एक्श्योर्ड उनको जॉब देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी। और अगर सम अब कैसे देगी, जैसे रोड बनवा दिया वहाँ आसपास कहीं, तो उनमें इसको कोई मजदूरी का काम दे दिया है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार उनको 100 डेज कम से कम, मतलब 3 महीने से थोड़ा ज्यादा उनको रोजगार देगी ही देगी। और अगर नहीं दे पाई तो फिर उस केस में उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मतलब जितना उनकी सैलरी बनती है उस हिसाब से सरकार उनको पैसे देगी। देन नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये दूसरा जो है प्रोग्राम चलाया गया। इट वाज लॉन्च्ड इन 2004। एंड ये देखो, ये जो मनरेगा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको चलाती है। देन एंड नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है ये 2004 में चलाया गया था 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसमें जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको काम दे। अनस्किल्ड कौन होता है? जिनको किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है, मतलब जो बिल्कुल या तो वो अनपढ़ है या तो उन्हें कोई काम नहीं करना आता है, मतलब किसी काम में वो दक्ष नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, तो उनको हम अनस्किल्ड कहते हैं। देन उनको उनसे काम करवाना और उनको मतलब उतना पैसा देना कि वो अपना खाना खरीद सकें, या फिर उनको जो सैलरी होती है वो खाने के फॉर्म में मिलती है, जैसे उन्हें गेहूँ दे दिया गया, बोरी चावल दे दिया गया, ताकि वो मतलब भूखे ना मरे, उनको जो है प्रॉपर अमाउंट में खाना मिल सके। The next है प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। It was launched in 1993 and it aims at creating self-employment for educated unemployed youth in rural areas. तो ये जो प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना ये 1993 में चलाई गई थी, और ये गांव के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा होते हैं उनके लिए चलाई गई। तो आपको पता है कि कौन से एरिया में चलाई गई थी? गांव के एरिया में। और किसके लिए? जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड युवा हैं, यूथ हैं गांव में, उनके लिए। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 1995 में चलाया गया था, और इसका मुख्य एम था कि जो गांव है उसमें जो है क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो दोनों की खासियत क्या है? क्रिएटिंग सेल्फ, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में भी और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में भी, दोनों की खासियत ये है कि दोनों को ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए चलाया गया था, कि मतलब जो युवा हैं उनको हम कहीं से नौकरी तो दिलवा नहीं सकते, कोई हर ये पॉसिबल नहीं कि हर गांव में हम सबको नौकरी दिलवाएं, लेकिन हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो खुद जो है अपने रोजगार, मतलब वो कुछ ऐसा हम ट्रेनिंग दे दें, कुछ उनको हम ऐसा सिखा दें, वोकेशनल ट्रेनिंग, सो दैट दे कैन सेल्फ इंटेलिजेंस, मतलब वो खुद कोई ना कोई रोजगार स्टार्ट कर सके, छोटा मोटा दुकान या शॉप से कुछ ना कुछ वो काम कर सके। देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में इसको आया था, ये लॉन्च किया गया था। देन ये बीपीएल फैमिलीज जो है उनको सपोर्ट करने के लिए था, सो दैट दे कैन बी ब्रॉट अबव द पॉवर्टी लाइन। देन बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी आर मेड अवेलेबल टू देम थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देन इनको जो है, जो हमारी बीपीएल फैमिलीज थी, जो गरीबी रेखा के नीचे की जो फैमिलीज हैं, उनको मतलब सरकार से कम सस्ते रेट में जो है लोन दिलवाना, गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू उनको जो है हेल्प करना, ताकि वो भी अपना कुछ रोजगार स्टार्ट कर सके। देन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इट वाज लॉन्च्ड इन 2000 एंड स्टेट्स आर गिवन हेल्प टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। में जो है हर राज्य को ये कुछ फंड्स अलॉट किए जाते हैं, ताकि वो अपने राज्य में जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये गरीब लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो these they were the some of the main poverty anti targeted poverty programs
लाइक जैसे अभी आपने पढ़ा, एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं। इसमें पहला क्या था, मनरेगा। सेकेंड वॉज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। देन प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नाउ government has passed government is doing so much for economic growth also in India, and they have passed so many schemes for target groups who are below who are those groups who are in a very bad condition, but still why so much poverty is still there in India। अभी तक पावर्टी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, 22%। लोग सोचो कि अगर हम ये 22% लोगों को हम कन्वर्ट कर दो तो ये मिलियंस एंड मिलियंस में पहुंच जाएंगे। तो भारत की मिलियंस ऑफ जो पॉपुलेशन है दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, विच इज अ वेरी नेगेटिव इंडिकेटर। नाउ व्हाई दी स्कीम्स वर फेल्ड, मतलब क्यों इतना फेलियर हो गया, ये सब इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। Poverty alleviation programs are not properly implemented in India. Many of the programs are only in paper. So the major problem in India is from the government side, not only in this, but all in any field. If you see that government only makes programs and policies on paper, but when it comes to reality for implementation, they never, the officers or the ministers, they never implement it in properly, बिकॉज दे सो मच करप्शन। जो भी पैसे जाते हैं गरीबी हटाने के लिए वो खुद अपनी जेब में बैठ के रख के बैठ जाते हैं, है ना। तो हमारे प्रोग्राम तो बहुत चलाए जाते हैं, बट अनलाइक अदर कंट्रीज, जो हमारे दूसरे देश हैं जहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली जो हर किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लाइक इन चाइना और मैनी यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया में जो है प्रोग्राम्स ऑन पेपर बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, बट इन रियलिटी दे आर नेवर इम्प्लीमेंटेड एंड दे नेवर बेनिफिट द पुअर पीपल इन इंडिया। So this is a very major drawback, and why? Because of the corruption. There are several schemes for poverty alleviation. We find an overlapping schemes. Overlapping schemes मतलब कि एक जैसी schemes बना दी जाती है और वो पेपर्स में दिखाने के लिए होता है कि हमने बहुत सारा काम किया, लेकिन एक्चुअली वो स्कीम्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती हैं। The next is corruption at the political level and also at the officers level makes these schemes ineffective. The real poor are not benefited. As I said in the first point only, that corruption is a very problematic situation in India, in bureaucracy at the minister level, of political level पर भी है, and the officers, दोनों की दोनों करप्शन बहुत ज़्यादा है। This is not true for each and every minister or officer, but in majority of the cases this is happening. So that's why instead of having so many wonderful programs or poverty alleviation programs, we are still facing problem because of corruption issues in India, which is very major problem. Then challenges in the way of poverty alleviation. So challenges can, number of poor people are more in the rural areas, so village development should be given importance. Some states of India are extremely poor, special development projects should be undertaken for them. Then illiteracy and ignorance are two challenges in the path of development of the villages. तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं भारत के सामने, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में है। देन हमारे देश में अनपढ़ता और इग्नोरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज डूइंग मैनी थिंग्स सो दैट पॉवर्टी कैन बी एलिवेटेड फ्रॉम द country. So now this chapter is completed. So if there is any problem, you can ask me later. बच्चों क्या आपको चैप्टर समझ में आया?